एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। राजनीतिक नेता धार ने कहा है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने पर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिपोर्टर से बात करते हुए धार ने कहा कि कांग्रेस, वीपीपी, बीजेपी और यूडीपी सहित किसी भी पार्टी की उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर से आने वाले कैंडिडेट्स का भी स्वागत है, क्योंकि लोकतंत्र खुली भागीदारी की अनुमति देता है। नार्थियांग से बसाए मौत के चुनाव लड़ने की अटकलों पर धार ने कहा कि ऐसा करने से अन्य जगहों पर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं और फिलहाल स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। धार ने कहा कि उनका मुख्य ध्यान लोगों के लिए मेहनत करने पर ही केंद्रित है। पंचायत कमेटी में I think maybe after session, I think, because we are still some things left to discuss. I think after the session we'll be having meeting on this. has any new development regarding the proposal of the state government to acquire No, defense land? we are sticking to the same thing. So yes, there is some other option also. Let us see when we see next time. I'll be able to tell you what is the other alternative if the first alternatives are working. What is the first alternative? That You know very blueprint well. You know very well. land of Blueprint has been prepared. Okay. And there is some request, so we are request from the defense land. If they give the defense land, will be more appropriate. So that is the second report. Let us see. But the blueprint that the government has presented before the HPC Yes, that still is- stands. Yes, that as of now still stand. So when final call is taken, only then I'll be able to tell you this is the final decision. More about this. एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माहवारी स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की स्कूल्स को लड़कियों के लिए मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। एपेक्स कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर प्राइवेट संस्थान नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भी राज्य सरकार को टॉयलेट सुविधा और सैनिटरी प्रोडक्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। The Supreme Court on Friday ruled that the right to menstrual hygiene is an integral part of the right to life and the right to privacy under Article 21 of the Constitution. The top court has issued a series of binding directions to states, union territories, and schools to ensure dignity, health, and equality for girls and women. The order was given by the bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan. Pronouncing its judgment on a plea seeking free sanitary pads and adequate sanitation facilities for schoolgirls, the Apex Court directed all states and union territories to provide biodegradable sanitary napkins free of cost to girl students in all schools. Quote, "Before parting with the issue, we want to say that this pronouncement is not just for stakeholders of the legal system. It is also meant for classrooms where girls hesitate to ask for help. It is for teachers who want to help but are not able to due to the lack of resources. Progress is measured by how we protect the vulnerable." Unquote. Justice Pardiwala observed before parting with the judgment. बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की गाइडलाइंस को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। दुबे ने कहा कि देश डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के तहत चलते हैं और उन्होंने जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% EWS रिजर्वेशन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आधार पर ही यूजीसी गाइडलाइंस तैयार की गई है और बताया कि अभी कोर्ट ने इन पर स्टे लगा दिया है। और हम उस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिस प्रधानमंत्री ने जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया। यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि सवर्ण पिछड़ों के बारे में ध्यान दिया। 10% आरक्षण यदि नहीं रहता
मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, देवघर में, एक छोटे से जगह में जहां मैं रहता हूँ, वहां के भी 10 बच्चे आसपास के उस मोहल्ले के 2020 के बाद जो है कम्पीट किए हैं। वो आज IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हाय तौबा की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया है, और इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी आपको कंफ्यूजन दिखाई देता है वो आर्टिकल 14-15 के हिसाब से ठीक हो जाएगा। और कल आपने देखा कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो चीजें कहा जा रहा है वो सही है। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वो UGC रेगुलेशन कायम हुआ था। विरोध यदि कहीं होना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध होना चाहिए था, लेकिन विरोध कहाँ है? विरोध जो है यहाँ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बातें कही है। कल कहा है कि 75 साल हो गया आजादी के, और अब समानता के अधिकार पर सबको जीना चाहिए। उन्होंने तो कई एक बातें कही हैं जिसका कि मैं पहले से ही तैसी रहा हूँ कि कॉलेजों में जो हॉस्टल्स बन रहे हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, OBC, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। समानता, अब तो अंतरजातीय विवाह इतने होने लगे कि कौन किस जाति के साथ विवाह कर रहा है, नोबडी नोज। हम अपने शहर में रहते हैं, दिल्ली में और मुंबई में, हमारे बगल का पड़ोसी किस जात का है, किस राज्य का है, ये भी लोग नहीं जानते हैं। तो देश काफी आगे बढ़ चुका है, और जो कुछ भी किया सुप्रीम कोर्ट का, हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, इस देश में सभी लोगों के साथ न्याय किया है और उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए, और जो भी इस तरह की घटिया बातें करते हैं उनकी मानसिकता। धार्मिक नेता अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने गौ हत्या और मीट एक्सपोर्ट जैसे मुद्दों को उठाते हुए सीएम को हिंदू हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने की चुनौती दी। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सिर्फ प्रतीकात्मक कदम काफी नहीं है और 2 मुख्य मांगे रखी। उत्तर प्रदेश में गाय को राजा माता घोषित करना और तुरंत मीट एक्सपोर्ट पर रोक लगाना। Swami Avimukteswaranand has issued a sharp 40-day ultimatum to Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, demanding action on cow protection and meat exports. The Swami said Yogi must prove his Hindu identity beyond saffron attire and speeches, warning that he will declare him a fake Hindu if demands are not met. He has placed 2 key conditions, declaring the cow as the state mother in Uttar Pradesh and stopping all meat exports from the state with immediate effect. The ultimatum has sparked a fresh political and religious flashpoint in UP. गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने उत्तर प्रदेश से 22 साल के मोहम्मद फैजान शेख को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ टारगेटेड हमलों की योजना बना रहा था। उसके पास से 1 पिस्टल और 6 जिंदा कार्ट्रिजेस बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसीज का कहना है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से प्रभावित था। मामले की आगे जांच जारी है। 22 years old and originally hails from Dudwala village in the Rampur district of Uttar Pradesh. Now, many revelations are being made about this terrorist. Fresh details revealing his links with banned terror outfits Jaish-e-Mohammed and Al-Qaeda. According to Gujarat ATS officials, Salmani had prepared a list of 7 people whom he planned to kill, which included the names of famous people from Delhi and Uttar Pradesh. गुजरात ATS कंटिन्यूसली भारत के किसी भी हिस्से में अगर कोई टेरर एक्टिविटी करने का प्रयास करता है तो उसको पकड़ने के प्रयास करती रहती है। इसी सिलसिले में गुजरात ATS के DYSP श्री हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक फैजान नाम का बंदा है जो मूल रामपुर UP का रहने वाला है और अभी लगभग 3-4 साल से नवसारी में रह रहा है। वो दर्जी के व्यवसाय में शामिल है। ये जो बंदा है ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो उसके हिसाब से पैगंबर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं। इन लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारे ग्रुप्स में भेजता है, वेपन भी कलेक्ट कर रहा है, इनको मर्डर करने का ये प्लान बनाता रहता है। साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद और अलकायदा के बहुत सारे चैनल से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि असम में 26,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराया गया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और तीसरी बार सत्ता में आने पर घुसपैठ को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प दोहराया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो,
एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालेंगे। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से आसाम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं, हमारे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मित्रों, एक घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर 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 हमारे गैंडों को खत्म करने का काम किया है। आज आसाम की जनता को मैं अपील करने आया हूं, ये जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है, इसको अगर आपने रोका नहीं तो आसाम आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत में आएगा। और जनसांख्यिकी का परिवर्तन, घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने। मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चुन चुन कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 5 वर्षों में हमने बहुत बड़ा आर्थिक सुधार भी किया है। आसाम की जीएसडीपी को 4.1 लाख से बढ़ाकर 7.2 लाख करोड़ तक ले गए हैं और आसाम के नागरिकों की आय में 50% की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई है। गुरुग्राम के विजय विहार सेक्टर 30 से सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें स्ट्रीट डॉग्स के हमले दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बार बार बाइटिंग के मामलों से डर का माहौल बन गया है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि फुटपाथ पर असमान फीडिंग के कारण कुत्ते एग्रेसिव हो रहे हैं। इस मामले पर अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान ना जाने के फैसले पर सवाल उठाया। यूएस डिप्लोमेट ने इस मुद्दे को खारिज करते हुए कहा कि ये एक बायलैटरल मामला है और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। Cricket event in Pakistan. Champions Trophy. Didn't have that on my bingo card. Go ahead. It's the biggest event after the Cricket World Cup. And India, due to participate in that event, but the Indian government refused to send Indian cricket team to Pakistan. Last time Indian team was in Pakistan in 2008 due to political tensions. India never traveled to Pakistan. So, I mean, do you really think that mixing politics with the sports is a good idea? I mean, what is your... So, look, first, as it relates to relations between India and Pakistan, that is certainly for them to speak to, whether it be through sports or other things. I will let them speak to their own bilateral relationship. Certainly not something for us to get in the middle of. भारत सरकार ने इलॉन मस्क के स्टारलिंक की जेन 2 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। ये सर्विस बिना ग्राउंड टर्मिनल के सीधे मोबाइल फोन्स पर सैटेलाइट सिग्नल देने के लिए प्रस्तावित थी। अधिकारियों ने कहा कि फैसले इसलिए लिया गया ताकि बिना नियंत्रण के विदेशी नेटवर्क्स भारतीय मोबाइल डिवाइसेस तक सिग्नल ट्रांसमिट ना कर सके। India has blocked Starlink's Gen 2 plan to beam satellite signals directly to mobile phones, rejecting the proposal over regulatory and security concerns. The technology would have enabled connectivity without towers or user terminals.
Authorities have cleared only Gen 1 satellite broadband services, which require ground stations and user dishes, keeping Starlink in line with existing Satcom operators. Officials said the General 2 proposal would have bypassed India's telecom networks, used frequency bands not approved under Indian law, and raised concerns over national security and spectrum control. India is now working on its own regulatory framework for direct-to-device satellite services. इस साल बाद में भारत ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगी, जिसमें राष्ट्रीय डिजिटल करेंसीज को जोड़ने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये कदम डी-डॉलराइजेशन के लिए बल्कि स्विफ्ट के विकल्प के रूप में एक पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए है। इस फ्रेमवर्क के तहत भारत की डिजिटल रूपी, चाइना की डिजिटल युआन और रशिया की डिजिटल रूबल को जोड़ा जाएगा, जबकि पूरी मॉनेटरी सॉवरेनिटी बरकरार रहेगी। India hosted BRICS summit later this year is expected to focus on a new payment system that links national digital currencies. The goal is not outright the dollarization, but building alternative payment rails that allow trade to be settled directly between sovereign CBDCs, reducing reliance on the dollar-based SWIFT network. The plan aims to connect platforms like India's digital rupee, China's digital yuan and Russia's digital ruble through interoperable infrastructure. Each currency will remain fully under national control, but cross-border settlement could become faster, cheaper and less vulnerable to Western financial pressure. दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड के 3 जोनल रेवेन्यू ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई इस बात के बाद की गई जब आरोप लगा कि अधिकारी समय पर ड्यूटी पर नहीं आए और लोग बाहर इंतजार करते रहे। कौन है यहाँ पे? जेडारू का क्या नाम है? एक महीने से रिपोर्ट पड़ी हुई, 15 दिन में होना चाहिए, तो क्या कर रहे हैं लोग? हाँ जी जितेंद्र जी, कहाँ हैं आप? अभी सारा आपका स्टाफ भी नहीं आया वो, अभी यहाँ पे जनता खड़ी हुई है, आपको सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? सारा काम संभालो यहाँ पे। कौन है जेडारू? कहाँ है वो? सर अभी वो आए नहीं। कितने बजे आए हैं? क्या टाइम हो गया आज? 10 बजे। एक ही आदमी आया अभी तक। आप कहाँ हो अभी? तो यहाँ पे आपकी लंबी लंबी लाइनें लगी, यहाँ पे दफ्तर में नहीं है कोई, यहाँ पे लोग आ रहे हैं बिल जमा कराने के लिए, आप उनका बिल नहीं जमा करा पा रहे टाइम पे। 11 बजे तक अपने ऑफिस नहीं आए आप, आपको सस्पेंड कर रहे हैं। 5 बजे तक ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जेडारो कहाँ बैठते हैं? जेडारो ऑफिस है ये? जेडारो रानी भट्ट जी बोल रही हैं? आपके ऑफिस में बहुत सारी शिकायतें हैं, लोग यहाँ पे 2 घंटे से खड़े हुए हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है और अभी आप भी ऑफिस नहीं पहुंची हैं, इसलिए आपको सस्पेंड कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट ग्रुप ने ब्राह्मणिज्म का प्रतीक करते हुए पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट के दौरान ब्राह्मणिज्म, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए गए। यूनिवर्सिटी प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है। पूर्व बीजेपी एमपी ब्रिज भूषण शरण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी रेगुलेशंस पर लगाए गए स्टे का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने रेगुलेशंस में कमी होने की संभावना जताई है और चेतावनी दी कि ये सामाजिक संघर्ष को जन्म दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर रोक लगा करके न्याय किया है। एक समाज को पहले से अपराधी मान करके ये कानून आ रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं देखा कि इससे टकराव पैदा होगा और कुछ न कुछ कमी पाई तो स्थगन आदेश किया। और इसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसके कारण, इस कानून के कारण जो हमारा सामाजिक ताना बाना बिल्कुल बिगड़ने जा रहा था, उसको बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है और न्याय किया है। अगली सुनवाई 19 तारीख में लगेगी। अब होती रहेगी। अब ये तो विद्वान वकील जो है अपना अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्थगन आदेश दिया है तो कुछ कमी पाई है तभी दिया होगा। आपने इसका विरोध किया, उसके बाद इस तरीके से रिएक्शन आया और लोग अब आम लोग भी इसमें आवाज उठाने लगे, कैसे देखते हैं? देखिए, किसी ने कहा है नहीं पाप का भागी होता केवल व्याध,
पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो मौन हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में उनका भी अपराध की चर्चा आने वाले समय में होगी, और मैं मौन नहीं रह पाता। कैसे देख रहे थे आप इसको कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस पे अगर रोक न लगाता तो क्या स्थिति होनी समाज में? क्या अब तक आप देखते इसी व्हाट्सएप मीडिया पर किस तरीके से युद्ध हो रहा है, गाली गलौज दोनों पक्षों में शुरू हो जाता। इस पे विराम लगा? बिल्कुल विराम लग गया। फैसला स्वागत है? बिल्कुल फैसला स्वागत है, और हम नहीं स्वागत कर रहे हैं, पूरा देश स्वागत कर रहा है। दोनों पक्ष स्वागत कर रहा है। जो दो पक्ष दो धड़े में मार दिया गया था, दोनों पक्ष स्वागत कर रहा है। आपके बेटे भी इसमें सदस्य, उन्होंने भी स्वागत किया है, उन्होंने भी वो भ्रम फैलाया गया था। वो ऐसी कोई कमेटी थी ही नहीं जिस कमेटी में डिस्कस हुआ हो। एक हमारे बेटे होने के नाते निशाना बनाया गया था। उन्होंने भी इसका स्वागत किया है, सबने स्वागत किया। एम्प्लॉय यूनियंस ने 8th पे कमीशन से पहले अपनी महत्वपूर्ण मांगे रखी है। इसमें 3.25 फिटमेंट फैक्टर और 5% वार्षिक इंक्रीमेंट शामिल है। अगर ये मंजूर होता है तो ग्रुप डी कर्मचारियों की बेसिक पे में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। Employee organizations have placed a major demand ahead of the upcoming 8th Pay Commission, seeking a fitment factor of 3.25 along with a 5% annual increment. If accepted, this demand could sharply raise the basic pay of Group D employees from 18,000 rupees to nearly 63,000 rupees, making it one of the biggest salary revision pushes in recent years. The unions argue that higher increases are necessary in view of rising living costs and non-pending pay corrections. The government has not yet issued a formal response, but pay revision negotiations are expected to intensify in the coming months. मशहूर ट्रक ब्लॉगर राजेश जी ने असम की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में बड़ा बदलाव देखा गया है। पहले रात में ड्राइविंग असुरक्षित मानी जाती थी, लेकिन अब ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये रूटीन बन चुकी है। हम तो हम लोग 10-15 साल पहले आए थे। हाँ। और पहले में और अभी में बहुत फर्क है। पहले हम लोग आते थे ना तो दिन में गाड़ी नहीं चला पाते थे, और हम ड्राइवर लोग अभी देख सकते हैं दिन में हम गुवाहाटी में चल रहे गाड़ी लेकर के। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी का जो मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, बहुत ही ग्रेट, मतलब उनका बहुत सा वीडियो देखे हैं, और वो ऐसा जो करते हैं गाड़ी वाले लोग के लिए, कहीं जाम ना लगे, ये ना लगे। आप देख सकते हैं, बता रहे वो समय याद करते हैं और अभी का कितना फर्क है। देख सकते हैं बाहर अभी हम गुवाहाटी बीच शहर में घूम रहे हैं गाड़ी लेकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले अगर रात में गाड़ी चलाना है, सुबह 4 बजे तक आपको गाड़ी लगा देना है साइड, चलना नहीं ज्यादा रात तक। ये ज्यादा दिन तक चलना, दिन में चले नहीं पाते थे। यहाँ से वहाँ जाने में, लोड करने में हम लोग को टेंशन होता था, बहुत परेशान। अभी बहुत अच्छा, बहुत आनंद है। मतलब पहले से अब आकर मतलब आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। आप बेधड़क आदमी आसाम गुवाहाटी आ सकता है, मेघालय जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। माजीवाड़ा में स्थित नॉन सेक्टेरियन त्रिमंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हो गया है। ये मंदिर जैनिज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म के बीच एकता का प्रतीक है। समारोह 30 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेंगे। अभिराम अक्षत रुद्र रूपम अकुल अनग महेश्वरा, शूल पाणी नीलकंठा विष्णु वल्लभ शंकरा, भक्त वत्सल भव जटाधर भीम उग्र मयंकरा, काल कालम हर विशालम वृषभारूढ़ दिगंबरा, मृदु कठोरम बम अघोरम गोपति बागंबरा। केंद्र सरकार ने 10, 20 और 50 रुपए के नोट देने वाले नए एटीएम्स शुरू करने की योजना बना रही है। हाइब्रिड एटीएम्स पर भी चर्चा चल रही है, जिसमें बड़े नोट्स को छोटे डिनोमिनेशन में बदला जा सकेगा, ताकि कैश डिपेंडेंट लोगों को सहायता मिल सके। Denomination currency notes. The aim is to ensure that $10, $20, and $50 notes are easier to access for people who still depend on cash for everyday transactions. According to a report by Mint, the government is considering introducing new automated teller machines, ATMs, that can dispense smaller notes instead of mainly $100 and $500 notes. Another idea under discussion is the use of hybrid ATMs that allow people to exchange large notes for smaller ones.
On Tuesday, 27th January, Gujarat ATS arrested Faizan Shakil Salmani, a resident of the Charpool area of Navsari, on charges of terrorism. He is 22 years old and originally hails from Dudwala village in the Rampur district of Uttar Pradesh. Now, many revelations are being made about this terrorist. Fresh details revealing his links with banned terror outfits Jaish-e-Mohammed and Al-Qaeda. According to Gujarat ATS officials, Salmani had prepared a list of 7 people whom he planned to kill, which included the names of famous people from Delhi and Uttar Pradesh. The brother of Delhi SWAT commando Kajal Chowdhury, who was brutally murdered by her husband, has shared chilling details of the final phone call he had with his sister moments before her death. Recounting the horrific conversation, Nikhil said the accused explicitly told him, "Mar raha hun teri behen ko," and asked him to keep the call on recording, claiming it would serve as police evidence. सुप्रीम कोर्ट ये जांच करेगा कि पंचायत सीट रिजर्वेशन के लिए ब्राह्मण्स को पॉलिटिकली बैकवर्ड क्लास माना जा सकता है या नहीं। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पॉलिटिकल बैकवर्डनेस सोशल या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से अलग होती है, लेकिन मामले पर विचार करने पर सहमति जताई। The Supreme Court has agreed to examine a plea seeking classification of Brahmins as politically backward, which could make them eligible for reservation of constituencies in panchayat elections. A bench led by Chief Justice Surya Kant said it is willing to consider the legal issue, but noted prima facie that politically backward classes may need to fall within the broader category of socially and educationally backward classes, or SEBCs. The court also referred to earlier rulings observing that political backwardness does not always overlap with social or economic backwardness. The matter could have wide implications for local body reservation policy. शुक्रवार को मेघालय में माय भारत माय वोट थीम के साथ नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। इस मौके पर वॉक फॉर डेमोक्रेसी और साइकिल रैली का आयोजन किया गया। शिलोंग के JN बास्केटबॉल कोर्ट में हुए इस कार्यक्रम का आयोजन माय भारत मेघालय ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिस, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से किया। इसका उद्देश्य वोटर रजिस्ट्रेशन और युवाओं की चुनावी भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर BDR तिवारी, जॉइंट CEO YR मौलोंग, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स DD शीरा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। My name is Shubhi Singh. And how did you enjoy the event today? Very nice event. Ragini. Okay, so Ragini, how do you find the event today? My name is Sachmara. Okay, so do you think that this kind of event should be further more? The environment and the climate also is not so hot. I like the food also. Do you think that these kind of events basically motivates, first? Last speech. His speech will be continuous for the cause of our democratic systems and for the being a good citizens of India. The speech and my commitment in whole life. Important for the youth to vote because it is our right. Like we can get the right to choose our leader. That's all. Thank you. Okay. इसका इवेंट बेसिकली वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है जो माई भारत शिलांग ऑफिस और चीफ इलेक्टोरल ऑफिस और ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट का जो इलेक्शन वोट इज इम्पोर्टेंट because we can have the right to vote. All cyclists choose and other all the participants please follow up. Choose the right for everything. Okay. गारो हिल्स में इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बढ़ती मांग के बीच मेघालय के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर BDR तिवारी ने कहा है कि इलेक्शन डिपार्टमेंट पूरी तरह तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी SIR होगा ये पूरे राज्य में एक साथ कराया जाएगा। अभी देश में 12 राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है। तिवारी ने कहा, मेघालय इलेक्शन डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शेड्यूल का इंतजार कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक्सरसाइज की जाएगी और डिपार्टमेंट सभी तैयारियां पूरी कर चुका है, बस ECI का आदेश का इंतजार है। Accordingly, when the schedule will come, we are also ready for rolling out the SIR in the state. So, if you can share some details about like what is SIR and like in how many states it has already taken place.
Presently, it is Bihar has already SIR completed and election also held for the assembly. And after that, in the second phase, 12 states are currently ongoing SIR as per schedule of Election Commission of India. So rest of the state will go as per the schedule announced by the Election Commission of India. Last question on this. As per the transparency and faith of the people is very important, and the guidelines are very much clear, and several preparatory activities has already been taken up in all the states as per instruction of the Election Commission. So we are also fully ready for the SIR. SIR is the one exercise, and it is a little bit different from regular SSR, as during SIR the entire voter list has been verified and based on the instructions. So BLOs going door to door, and as per the prescribed manner, they used to verify those entries in the voter list, and accordingly there is no appeal file in the state like Bihar, and certainly the process is going very smoothly in other states also. So it will bring the electoral roll very clean and free of error. So that is the main purpose, and once the schedule will come, then Meghalaya will also. अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.